ਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰੋ ਕਾਰਡਸ यूज़ करते हो है ना, ਤੇ ਟੈਰੋ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? पिक्चर्स हैं वो क्या डिपिक्ट कर रही हैं, ये 8 नंबर का कार्ड है, शनि का कार्ड है। आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਡਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਚਲੋ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਚੱਲ ਰਹੀ है तो आई वांट कि ऑन स्क्रीन तुसी कुछ करके दे। मतलब कि मुझे जसमीत, मुझे लगता है कि आपको चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करने में थोड़े इश्यूज आ रहे हैं, बट यू हैव समथिंग जो आप अंदर दबाया हुआ है। ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੋਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਡਸ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਉਹ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਊਚਰ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਟੈਰੋ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੇਸ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। फेस रीडिंग एक डिफरेंट चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है, रातों रात कुछ नहीं होता। ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ? ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ? बिलीव करो, फेक इट टिल यू मेक इट इज द राइट सेंटेंस। बिलीव इट दैट आई हैव दिस जॉब। तो उससे पहले वाली रात मुझे ड्रीम आया कि 6th या 7th नंबर पे मेरी डॉटर का नेम आ गया है। ओह माय गॉड, आई स्वेयर। जे मैनीफेस्टेशन इन्नी स्ट्रोंग चीज़ है ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ। मंदिर में जाके, कभी जाके गुरुद्वारे में जाके रोना निकले, जब निकलता है, प्रेयर्स करते हुए आपके आंसू निकले, जब वो एनर्जी भगवान है। कई बार आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कोई भजन सुन रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, यू गेट गूज बम्प्स। यस, दैट इज द एनर्जी, इज गॉड। लेकिन अगर मैं मन से सोच रही हूँ कि इसका बुरा हो जाए और इसका काम कैसे बन गया, मेरा क्यों नहीं बन रहा, या ये कैसे प्रोग्रेस कर गई, मेरा तो अंदर से गालियां दे रही हूँ, मुंह पे नहीं बोल पा रही, दैट इज ऑल्सो कर्मा। ओके, दैट इज ऑल्सो कर्मा। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਛੱਡ ਯਾਰ ਇਦਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵਿੱਚ सारी बातें करके हम कह देते हैं चल हम भी गए। हम इंसानों को आते हैं 60,000, उसमें से नेगेटिव बताओ जी और पॉजिटिव बताओ। मुझे लगता है 50-50 होता होगा। कुछ लोग ना अपने मोबाइल नंबर्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਹੋਣ, ऋतिक रोशन होण। लेकिन इसकी प्रैक्टिस चाहिए। आई टेल देम कि आप प्रोफेशनली एकदम से ये मत सोचो कि हमने सीख लिया हम उतर जाएं, है ना, करने। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ ਦੱਸ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। जस्ट वन थॉट, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ये दिस टू शैल पास, ये टाइम भी निकल जाएगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ। ਸਾਥੀਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗਾਈਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨੇਹਾ ਬੁੱਧੀ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਟੈਰੋ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਥੀਆਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਝਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਮ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी जसमीत। ਤੇ ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸਟਰੋਲੋਜੀ, ਟੈਰੋ ਰੀਡਿੰਗ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सब ऑकल्ट साइंसेस हैं और सबका एक मूल मंत्र एक ही है
सोर्स एक ही है ओकल्ट का, और ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको चूज करता है, आप इसको चूज नहीं करते. इफ यू आर ब्लेस्ड देन यू विल गो इनटू ओकल्ट. अगर भगवान को या डिवाइन एनर्जी को या यूनिवर्स को लगेगा कि आप में वो पावर है, तो आप एस्ट्रोलॉजी में जाओगे. और इंसान की प्रॉब्लम्स जो डे टू डे हमारी लाइफ में चलती रहती हैं, जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, बेबी नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, मैरिज इश्यूज हैं, मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिवोर्स केस चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग, टैरो, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, ऑल दिस थिंग्स कैन हेल्प. और हमारी लाइफ जो है नंबर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है. 1 से लेके 9 नंबर, हम जहाँ जिस डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए, हमारा मोबाइल नंबर, हमारा हाउस नंबर, हमारा कार नंबर, वो सब की एनर्जी हमको इफेक्ट करती है. एंड एस्ट्रोलॉजी आपको हर प्रॉब्लम सॉल्व करने में ग्रेट एक्सटेंट तक हेल्प कर सकती है. ਓਕੇ ਨੇਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟੈਰੋ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? आई हैव, मेरे पास इंस्टाग्राम पे इस टाइम पे लाइव 350 प्लस फीडबैक्स हैं जिन लोगों के काम बन चुके हैं. जेन्युइन एक फीडबैक दूं तो गूगल पे आई हैव 110 प्लस फीडबैक्स. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फीडबैक्स नहीं भी दिए, जो काम हो जाता है तो भूल भी जाते हैं. देयर आर वेरी फ्यू जो आपको रिस्पॉन्स देते हैं. एंड उसके बाद ये भी है कि मैं ये नहीं कह रही कि 100% आपकी प्रेडिक्शंस सही होती हैं या आपके सबके काम बनते हैं. 80% आई हैव सीन कि लोगों के काम बन जाते हैं. कई बार ऐसा होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप क्वेश्चन पूछते हो, अपनी प्रॉब्लम बताते हो, वो मेडिसिन देता है, आप मेडिसिन नहीं लेते. अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में कोई मेडिसिन दे रहे हैं, कोई रेमेडी दे रहे हैं, आप नहीं करोगे तो आपका काम नहीं बनेगा. मतलब टैरो रीडिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ रेमेडीज ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ? बिल्कुल, टैरो में भी रेमेडीज रहती हैं, लेकिन रेमेडीज जो हैं वो रिवॉल्व करती हैं कुछ दान करके, कुछ मंत्र जाप करके, कुछ क्रिस्टल पहन के, या बड़े बुजुर्गों की सेवा करके, पितृ शांत करके. बहुत सिंपल एंड ईजी टू डू रेमेडीज, जिनसे कि हमारी डे टू डे प्रॉब्लम्स और हमारा कर्मा बेटर होता जाएगा एंड प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व होती जाएंगी. ਅੱਛਾ ਨੇਹਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰੋ ਰੀਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ? ਉਹ ਵਾਈਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਵਾਈਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ. ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ बैठे बंदे ਦਾ फेस देख के पता लग जाता होना. फेस रीडिंग एक डिफरेंट चीज है, बट इंट्यूशन आपकी एक अलग चीज है. ठीक है. आप जब टैरो खोलते हो, जितना आपका एक्सपीरियंस और आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, जितना आप स्पिरिचुअलिटी में या अध्यात्म में या पाठ वगैरह, मंत्र जाप अपने ऊपर वर्क करोगे, जितना अपना मन शांत करोगे, इनफैक्ट उतना आप ऊपर डिवाइन की जो आवाज है थर्ड आई पे, वो आप सुन पाओगे. एंड जब आप रीडिंग्स करते हो तो जो आपके मुंह से निकल रहा है, दैट इज द डिवाइन मीडियम. आप एक मीडियम हो, आप सिर्फ उस बात को पहुंचा रहे हो सामने वाले तक. अपने आप को कभी भी भगवान मत मानो. 100% प्रेडिक्शन कोई भी साइंस नहीं कर सकती, और 80% तक आई हैव सीन कि लोगों के काम बन जाते हैं और अच्छे. मैं बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਅਕਲਟ ਸਾਇੰਸਿਸ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਰੈਮੇਡੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਛੱਪੜ ਪਾੜ ਕੇ ਮਿਲੂਗਾ ਪੈਸਾ. पूछो वो बन गए हैं क्या? हाँ, ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ है ना कि ਤੁਸੀਂ. बिल्कुल, मेरे क्लाइंट्स मुझे ऐसे रील्स भेज के ना, वीडियोस भेज के कहेंगे मैम ऐसा कुछ करेगी. ऐसे उनसे पूछो पहले आपकी बनी है? आपकी बनी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रातों रात कुछ नहीं होता. आप अगर रेमेडी कर रहे हो, साथ में आपको एक्शन, अगर मैंने आपको कह दिया कि आपकी जॉब लगने वाली है 3 महीने में, ठीक है, आपने जाके अप्लाई नहीं करा, तो क्या आपकी जॉब लग जाएगी? क्या घर पे आके कोई नॉक करेगा कि आज जी जॉब ले लो जस्मीन? कर्म करना जरूरी है. कर्म, एक्शन इज नेसेसरी. आपका एक्शन है आपका कर्म. आप अप्लाई करो. मैं वो कह रही हूँ आपको मिल जाएगी. साथ में ये एक दवाई ले लो, एक रेमेडी कर लो, और आप जॉब, आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई, आपको मिल जाएगी. बट अगर आप कहोगे ढूंढा ही नहीं और बैठ गई कि मैम ने बोला था कि मिल जाएगी, देन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. एक्शन इज नेसेसरी. जी ਨੇਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਰੋ ਕਾਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈਨਾ? ਤੇ ਟੈਰੋ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦਾ ਸ਼ੁरुआत ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕੁछ ਦੱਸੋ. टैरो देखो फॉरेन से आया, फॉरेन लैंड से आया. पहले ये यूज होते थे प्लेइंग कार्ड्स के जैसे. अच्छा. लेकिन धीरे धीरे इनका एक इम्पोर्टेंस लोगों को समझ में आने लगा. टैरो में इमेजेस होती हैं, कुछ इमेजेस होती हैं जिनको कि हम जो हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेट करता है, कि इस कार्ड में नंबर है और एक पर्सन बैठा है. तो जो पिक्चर्स हैं वो क्या डिपिक्ट कर रही हैं? ये 8 नंबर का कार्ड है, शनि का कार्ड है. आपको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपना गोल अचीव करने के लिए. और ये बना क्या है? पैसा. एलिमेंट्स, जैसे हम कहते हैं 5 एलिमेंट्स के अराउंड हमारी लाइफ रिवॉल्व करती है. अर्थ, वाटर, फायर, स्पेस एंड वुड. एयर एलिमेंट हो गया ना. तो ये सब
टैरो भी उसी के बेस पे चलता है, वास्तु भी उसी के बेस पे चलता है, न्यूमरोलॉजी भी उसी पे चलती है, एस्ट्रोलॉजी भी। हम क्या कहते हैं जब कोई मर जाता है, हम क्या कहते हैं? 5 तत्वों में विलीन हो। 5 तत्वों बस में वो विलीन हो उन्हीं गया। पे, हम उन्हीं से बने हैं, दैट इज द यूनिवर्स। आप भगवान को किस रूप में मर्जी मानो, एक ही है, एक ही सोर्स है। तो टैरो में जो इमेजेस हैं और इनकी प्रिडिक्शंस, इसके बेस पे इनको प्रिडिक्शंस है, प्लस आपकी इंट्यूशन और जितना आपका एक्सपीरियंस होएगा, फिर जो आपके मुंह से निकलेगा दैट इज योर कम्युनिकेशन। बस ये प्रेयर करके एक टैरो रीडर बैठता है कि जसमीत मेरे पास आई है तो मैं किसी भी रूप में इसको मिसगाइड ना करूं, जो आपने मेरे थ्रू इसको मैसेज देना है दैट इज फाइनल। ओके। सो एवरी गुड टैरो रीडर ऑलवेज डू दिस कि आपकी एनर्जी कैच करे। ਓਕੇ ਨੇਹਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਇਵੈਂਟਸ ਟੈਰੋ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਪਿਕਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ नंबर ਸ਼ਫਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। इंट्यूशन, एक्सपीरियंस। आपने पूछा जॉब, अब सेम कार्ड आ गया। किसी और ने पूछा मेरी मैरिड लाइफ कैसी चलेगी, यही कार्ड आ गया जिसकी हम बात कर रहे थे, ये कार्ड आ गया। मैं कह रही हूँ आप चेस कर रहे हो जॉब को, लेकिन आपको अपनी कैपेबिलिटी से कम मिलेगी। अब वो पूछ रहे हैं कि 7 नंबर है केतु, वो कह रहे हैं मेरा रिलेशनशिप कैसा रहेगा। मैं कह रही हूँ कि आप जो अपनी वाइफ है आपके पास, उनकी वैल्यू नहीं कर रहे, उनसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, आप अंदर अंदर अपने मन में खोए हुए हो। ओके। तो एवरी कार्ड डिपिक्ट्स डिफरेंट आंसर फॉर समवन। और टैरो इतना क्रिएटिव है कि 14 इयर्स के बाद मैंने रिसेंटली एक कार्ड निकाला किसी के लिए और मुझे कुछ और ही मीनिंग नजर आया। जो कि हाँ, और ऐसा नहीं है कि इसका कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है टैरो में। टैरो में हर कार्ड का डिफरेंट मीनिंग है, हर रीडर एक डिफरेंट तरह से एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं उस कार्ड को। मल्टीपल, लाइक एक कार्ड में आपको 10 मीनिंग्स भी नजर आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाँ बिल्कुल, आपकी इंट्यूशन जो बोल रही है दैट इज द फाइनल आंसर। ਅੱਛਾ ਨੇਹਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੋਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਡਸ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਉਹ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਊਚਰ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ ਟੈਰੋ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? फर्क है जी, फर्क है। वो तोते वाला रीडर नहीं है ये। अच्छा। दिस इज टैरो हीलिंग, हीलर। ठीक है। टैरो रीडर वो डिफरेंट है, बट मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है या उनका क्या प्रोसेस है, बट हम भी तो कुछ करते थे ना। देखो हमारा कुछ, मेरे को टैरो रीडिंग इज लाइक अ जीपीएस। जीपीएस क्या है कि आपको रास्ता बता रही है, आपको दिल्ली जाना है, ठीक है? दिल्ली जाने के लिए 3 रास्ते हैं। आप जीपीएस आपको 3 रूट्स दिखाएगा, दिस इज द लॉन्गर रूट, दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट, दिस इज द जिसमें ट्रैफिक है, ठीक है? उसी तरह से आपको लाइफ में चूज करना है कि मेरे पास 2 ऑप्शन है मैरिज के लिए, विच विल बी बेटर। ओके। तब आपको कंफ्यूजन है, तब आप टैरो पे जाओ कि आप टैरो रीडिंग लो कि क्या चीज बेटर रहेगी, ठीक है? अगर आपको जॉब नहीं नजर आ रही, इट्स लाइक अ जीपीएस, आपको रास्ता दिखाएगा कि ये रोड मुश्किल है, ये रोड लंबी है। ऐसा नहीं कि सारी, एक कोई ऐसी रोड होएगी जो स्मूथ होएगी, एक होएगा जिसमें कम चैलेंजेस होंगे, ठीक है? उस रोड को आप चूज करो। ਅੱਛਾ ਨੇਹਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਡਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रही हूँ आप जो लोग बातें नहीं बताते ना, वो भी अपने आप टैरो में आ जाते हैं। ਚਲੋ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਨੇਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ, ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਕਿ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ। आपका कम्युनिकेशन आपका अच्छा रहेगा, एंड व्हाट डू वी कॉल इज कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी। आपको मैथ्स टाइप होता है ना जो चीज़ें, अकाउंट्स, मैथ्स, ये आपकी अच्छी होगी। 30 इयर्स के बाद आपको और सक्सेस मिलेगी एंड आपका डेस्टिनी नंबर मूव करने लग जाएगा। अभी 4 है ना, फिर 5 की एनर्जी आपके साथ जुड़ेगी, दैट विल बी बेटर। 30 के बाद आपकी करियर ग्रोथ बेटर होएगी। सो जसमीत, आई ऑल्सो वांट कि आप भी मन में एक बार प्रेयर करो टू गेट द राइट गाइडेंस। ओके। बस प्रेयर करने के बाद अपने आप हाथ जहां पहुंच जाए, दैट कार्ड हैज योर आंसर। ओके।
हालांकि मुझे जसमीत मुझे लगता है कि आपको चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करने में थोड़े इश्यूज आ रहे हैं और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप थोड़ा चैलेंजिंग फेस में चल रहे हो कि स्ट्रगल चल रहा है कुछ ना कुछ चीज़ में, लाइफ में एक चीज़ में तो स्ट्रगल चल रहा है कि आपको, जिसकी वजह से आपको बैक एंड पे आपको परेशानी हो रही है। बैक एंड पे आप वो दिखा नहीं रहे, यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइलिंग फेस बट यू हैव समथिंग जो आप अंदर दबाया हुआ है एंड उसके लिए आप हेल्प लेने के लिए भी विलिंग नहीं हो, हेल्प नहीं ले रहे, वो अपने अंदर अंदर रखी हुई है और जितना भी कोशिश कर रहे हो कुछ ना कुछ आपसे मिस हो रहा है या छूट रहा है। एंड आई सजेस्ट कि आपको मंदिर, भगवान, स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा, जिन भी गुरु मानते हो, नहीं जाने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट्स घर में बैठ के, कहीं पे भी बैठ के, योर सेफ स्पेस, 5 मिनट जाप करो, नाम जाप करो, बस उतना करो। और हेल्थ वाइज भी थोड़ा अपना, मतलब आई फील यू आर वेरी केयरलेस कि चलो चल रहा है, चल ही जाने दो, जैसे थोड़ा सा अपना और ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। थोड़ा सा ये वाला ये ईयर में कह सकते हैं कि थोड़ा स्टैग्नेंट रहेगा। नेक्स्ट ईयर थिंग्स विल गेट बेटर फॉर यू, मतलब अगले साल ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ? ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ? मतलब मैनिफेस्टेशन क्या है ना, हम ये सोचते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में हुआ उसकी वजह से मैं नेगेटिव हो रही हूँ, जबकि इट्स वाइस वर्सा। जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं सोचते आ रही हूँ, उसके बेस पे जो होएगा दैट इज मैनिफेस्टेशन। आप नेगेटिव सोच रहे थे तो हुआ, ये नहीं कि आप उस सिचुएशन के बाद नेगेटिव हुए हो। आप नेगेटिव चल रहे थे, दैट्स व्हाई दिस हैपेंड। हाय मेरा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, हाय मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरे को बड़ा डर लग रहा है ना, उस तरह के थॉट आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस सिनेरियो में चले जाओगे। ठीक है। अगर आप आई हैव एक्सपीरियंस इट माई सेल्फ, कुछ मत करो, सिर्फ अच्छा सोचो और बी ग्रेटफुल। मतलब ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। इधर उधर बहुत सारा ज्ञान हैगा, तो ऐसा नहीं है। आई विल क्लियर दैट फॉर यू। देखो आप सबसे पहले तो शुक्राना पे करो। आज हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, वी आर अलाइव, वी आर सेफ आफ्टर कोविड, वी हैव अ रूफ, हमारे ऊपर एक छत है, हम कुछ भी टाइम पे कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, वी हैव वाटर टू, द बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ, वी हैव अ गुड फोन, वी हैव room, laptop, TV in every room. Exactly. Everything is there. Everything we need for a comfort life. We have everything. Still we are cribbing out. यार ये नहीं हो रहा, क्रेविंग ये नहीं हो रहा, जो छोटा सा एक काम नहीं बन रहा, ये नहीं हो रहा मेरा फोन, मेरी तो किस्मत बड़ी खराब है। लोग अपने आप से इतना ऐसे बोलते हैं नेगेटिव, मेरी किस्मत ही भगवान ने माड़ी रखी। और जरा सा कुछ गलत हो जाए तो सबसे पहले भगवान पे ब्लेम, रुस जाएंगे। हाँ, वो हमारा परमात्मा, हमारा पिता है, लाइक फादर एंड मदर। तो फादर कभी भी अपने बच्चे का गलत नहीं सोचते। जो भी हम रीप कर रहे हैं वो हमारे कर्म है, कर्म पे हम अभी आएंगे। बट मैनिफेस्टेशन क्या है? आप बिलीव करो, फेक इट टिल यू मेक इट इज द राइट सेंटेंस। बिलीव इट दैट आई हैव दिस जॉब। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब कि उਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ प्रेडिक्ट करी जाओ भी हो गया उसी तरह। हाँ, उस विश्वास अपने अंदर, इतना स्ट्रांग विश्वास दिला दो कि यूनिवर्स को भी लगने लग जाए कि हाँ यार अब करना वो क्या एक मूवी में थी ना लाइन, सारी कायनात उसको मिलाने में लग जाएगी, आप दिल से जाओ। बस वही मैनिफेस्टेशन है। और जब मैंने ये कंसेप्ट, तो देखो 2-3 साल पहले थोड़ा ज्यादा मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ट्रेंडिंग में आया है, लेकिन ये जब मैंने इसको समझा तो मुझे लगा, आई हैव अ कोर्स ऑल्सो ऑन द सेम, प्रॉपर वीडियोज के साथ। जब मैंने समझा तो मुझे लगा मेरी तो सारी लाइफ मैनिफेस्टेशन है कि मैं, आई वाज थिंकिंग कि मेरे को ऐसा हस्बैंड चाहिए जो नॉनवेज ना खाता हो, है ना। माय ब्रदर इन लॉ, ही इज लाइक फॉन्ड ऑफ नॉनवेज, बट माय हस्बैंड ही इज एन एंटी। सो इट्स सो ग्रेट कि मैंने उसमें कि यार बस एक ही मेरा क्राइटेरिया था कि वो ना हो, और वो भी हो गया। उसके बाद मेरी डॉटर का एडमिशन होना था, सतपॉल में हमने अप्लाई किया। ओनली दैट स्कूल आई वांटेड, ओनली दैट। सो वो आई वांटेड टू शेयर दिस बिकॉज जब मैं इसको करती हूँ मेरे को गूज़बम्स और अभी भी आंसू आते हैं कि वो कैसे हुआ। तो हम ड्रॉ में चला गया हमारा नेम, वी वर लाइक पॉइंट सिस्टम था, हम 1 पॉइंट से रह गए। आई वाज फाइटिंग विद माय हस्बैंड कि अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों नहीं करी, 1 नंबर हमारा रह गया, नहीं तो हम वी वर इन 66 ड्रॉ में सीट्स थी और हमारे 66 बच्चे थे और 22 सीट्स थी सिर्फ, 1/3। तो उस रात मैंने कहा नहीं, ड्रॉ में हमारा नाम आएगा। इट वॉज अ वेरी फेयर सिस्टम, हम सब बैठे थे, प्रिंसिपल थी और अपने नाम से आपने बच्चे का चिट डाला और उन्होंने निकाला। ठीक है, तो क्या हुआ
कि आई रोट हर नेम। तो उससे पहले वाली रात मुझे ड्रीम आया कि 6th या 7th नंबर पे मेरी डॉटर का नेम आ गया है। ओह माय गॉड, आई स्वेयर। और ये मैंने उसने अपने कोर्स में बिठा लिया। अब बोल रही हूँ ना मैं, आई हैव दिस गेटिंग इमोशनल। तो वो आई थिंक 4th या 5th पे आ गया था। ओह माय गॉड। अब 66 में से 4th या 5th नंबर पे उसका नेम आ चुका था। एंड वी वर रिलीव्ड। एंड उसके बाद माई सन ऑल्सो इज इन द सेम, यू नो। तो मुझे लगा कि यार मेरी तो सारी लाइफ हुई। एंड देन आई चेंज माई थॉट कि यू नो बस मेरे को तो मैनिफेस्ट, मतलब मेरे को अच्छा ही सोचना है। रोज रात मैंने अपने बच्चों को भी ट्रेनिंग दी है कि वो भी मम्मा थैंक यू एवरीथिंग, मम्मा प्रेयर करो, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गॉड जी। हाँ, कि आप हमें आपने सेफ रखा, हमें आपने प्रोटेक्टेड रखा, है ना। और मैं उनको कहती हूँ कि आप बोलो कि मेरे को स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर बनाओ, बिकॉज दे बोथ आर वेरी पिटीट। सो आई टेल देम कि यार आप बोला करो कि मेक अ स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर। तो वो दोनों करते हैं ना। ਮਤਲਬ ਨੇਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਨੇਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ बड़े आराम नाल हो जाए। मंत्र की बात कर रहे थे, जो तंत्र मंत्र करता है पहले उसके ऊपर से नेगेटिविटी निकलेगी ना। अगर कोई क्रिमिनल है वो खुद ही नहीं बेचारे खुश, और वो जो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं तो उनसे पहले उनसे निकलेगा ना, उनकी बॉडी, उनकी फैमिली, उनकी पूरी लाइफ खत्म है। दैट्स व्हाई दे हैव हर्ट। तो वो दूसरों को दुख दे रहे हैं, वो खुद ही हर्ट है, ग्रीफ में है, वो अपना पास्ट लाइफ का कर्मा लेके आ रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि वर्क करती है या नहीं, बट दे डू नॉट हैव दिस एनर्जी ओनली टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट। ओके, मतलब वो बेचारे आप ही फंसे हुए हैं। आप ही। तो अगर आपके पास दुख है तो आप दुख बांटोगे, अगर आप हैप्पी सोल हो तो आप खुशियां बांटोगे, आप पॉजिटिव हो तो आपकी एनर्जी कहीं से भी स्प्रेड कर जाएगी। यू विल अट्रैक्ट द राइट काइंड ऑफ पीपल। एंड देयर आर पीपल, आई हैव लिटरली रिफ्यूज्ड कि मैं आपकी रीडिंग नहीं ले सकती। दिस वन गाय ही के मैम, मैंने 60 एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाया, मेरे को यही लड़की चाहिए। आई सेड आई कैन नॉट हेल्प यू, नो वन कैन। मैम मैंने कहा फिर आपका सॉल्यूशन नहीं हुआ। मैम बनी थी, फिर से खराब हो गई, फिर से बनी, बस ऐसे ही हो ही जा रहा है। व्हाट इज दिस यार, दिस इज नॉट एस्ट्रोलॉजी। आपको नहीं करना चाहिए ऐसा इतना सारा। तो और कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और नेगेटिव फेज में अगर आते हैं तो आई टेल देम कि आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू। अगर प्रेडिक्शन भी किसी की गलत हो जाए, रेयर केस में मुझे किसी ने बोला होएगा कि मैम मेरा काम नहीं बना, और वो भी ऐसे बोला था, उसने बोला था मैम आपके रिव्यूज पढ़ती हूँ, सबके काम बन जाते हैं, एक मेरा ही नहीं बन रहा है ना। तो आई सेड प्रेडिक्शंस आर नॉट 100%, बट आई हैव गिवन यू माई बेस्ट कि जितना हो सकता है। आपको रेमेडीज भी दी है, हैव फेथ। ज्यादा क्या होएगा आपके पास, फिर नहीं आएगा, बट देयर इज नथिंग टू लूज। हम कोशिश ये करते हैं कि जेन्युइन रहें, किसी को मिसगाइड ना करें, किसी को आप कम्युनिकेशन कुछ गलत ना करो अपने अंदर से जो निकल रहा है, बिकॉज इट विल इफेक्ट कर्मा। इसमें क्या, आप जॉब कर रहे हो दैट इज फाइन, लेकिन जब आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो ना, आपका कर्मा बहुत इफेक्ट होता है। ਕਰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰਮਾ ਇਹ इफेक्ट ਤਾਂ ਕਰਦਾ, पर नेक मिसगाइड करने में कर्मा आपका, फिर आपको भी इफेक्ट आते हैं ना। दैट्स व्हाई वी कट द कॉर्ड। आपकी मेरी एनर्जी जुड़ गई तो मेरे को उसको कट करना है। मेरे को ये नहीं सोचना, मेरे को डिटैच्ड होके आपको गाइड करना है। मेरे को ये नहीं सोचना कि जस्मीन हाय बेचारी दा काम बन जाए, काम बनना ही चाहिए, मतलब जिਵੇਂ डॉक्टर्स करते हैं, नहीं तो मेरा क्या होएगा यार, नहीं तो मेरी प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी, तो क्या वो मेरे को अच्छा फीडबैक, ऐसा नहीं सोचना। ना ही आपके बारे में ज्यादा वरी करना है। डिटैच रह के प्रैक्टिस करो, डिटैच रह के आप अच्छी गाइडेंस भी दे पाओगे। तभी मैं अपनी फैमिली के लिए नहीं करती, क्योंकि हम बायस हो जाते हैं। अपने लिए भी निकाल रहे हो तो बायसनेस आ जाती है कि यार नहीं मुझे तो यही सुनना था, लेकिन हुआ नहीं। और लोगों को भी यही होता है कि मैम अच्छा ही बताओ ना, पॉजिटिव ही बताओ, बट जो टैरो ने बोल रहा है, टैरो की एनर्जी टैरो बताएगा। तो आई कैन नॉट, हम नहीं उससे चेंज कर सकते। और जो आया मुझे वही बताना है, ईदर इट इज रॉन्ग, ईदर इट इज राइट, ईदर यू कैन रिलेट और नॉट, बट दिस इज अ रूल कि जो दिख रहा है वो ही बोलो। ऐसा नहीं कि अपनी, मैं आपको पहले से जानती हूँ अगर, तो आपको बायस ने, हाँ मुझे तो पता है ये ऐसी है, मैं ऐसे बोल देती हूँ, ऐसा नहीं करना। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੈਚਡ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਜੇ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਆਈ ਸੀ ਦ ਸੀਕ੍ਰੇਟ। हाँ जी बिल्कुल, बहुत लोगों ने पढ़ी, वो बेस्ट सेलर रही है वो किताब, तुसी पढ़ी हो किताब? मैंने पढ़ी हुई है सीक्रेट। और जब आपको लाइफ में लो लगने लगे, देयर वाज अ टाइम आई वाज लाइक लो फॉर 4 days, मैंने सीक्रेट उठाई, मैंने यूट्यूब पे मूवी लगाई एंड आई सॉ इट, एंड देन अगेन आई स्विच्ड ऑन टू पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ। तो इट्स वंडरफुल। सीक्रेट हो गया, मैजिक हो गया, गुड वाइब्स गुड लाइफ, दिस आर द वेरी गुड बुक्स। तो आपको माइंडसेट
चेंज करने में, एम्पावरिंग योर माइंड। आई एम रीडिंग आजकल गौर गोपाल दास की, Okay. सो आई टेक आउट टाइम कि चलो थोड़ा थोड़ा रीडिंग, बट सीक्रेट एंड मैजिक दे आर वेरी गुड बुक्स। ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਨੇਹਾ ਨੇ ਗੌਰ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਨੇਹਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ नहीं कर सकते? कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकता, हम ठीक सबको है। करनी चाहिए। देखो, अगर हमें इस जन्म मरण के चक्कर से निकलना है, रीबर्थ के पैटर्न से, अब मुझे नहीं पता ऑडियंस कितना बिलीव करती है या आप कितना बिलीव करते हो, नीदर आई कैन मेक यू बिलीव, बट गीता में भी लिखा है कि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम फिर अच्छा बर्थ लेते हैं, अच्छी फैमिली के अंडर पैदा होते हैं, अच्छे पेरेंट्स मिलते हैं, अच्छी लाइफ मिलती है ना, फिर धीरे धीरे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते जाते हैं, है ना। तो सबको करनी चाहिए, बट एक टाइम आता है कि हमारा माइंड बंद हो जाता है, हम नहीं मानते भगवान क्या है ना, हम नहीं मानते भगवान क्या है। भगवान क्या है? भगवान एक शक्ति है, एक पावर है, एक एनर्जी है। मंदिर में जाके, कभी जाके गुरुद्वारे में जाके रोना निकले जब निकलता है, प्रेयर्स करते हुए आपके आंसू निकले जब, वो एनर्जी भगवान है। कई बार आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कोई भजन सुन रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, यू गेट गूज बम्प्स, दैट इज द एनर्जी, इज गॉड। और कुछ नहीं, आप सोचो ना कि कोई स्वरूप में आके हमें, इट्स अ जोत, तो हमें अल्टीमेट गोल लाइफ का क्या है कि हमें उस परमपिता आत्मा में मिलना है। तो वो आपको उसके लिए आपको बहुत जन्मों से गुजरना पड़ता है, बहुत कर्म। तो जितना अच्छा कर्म करोगे उतना अच्छा आप जल्दी इस निकलोगे, ठीक है। प्लस अब अच्छा कर्म क्या है? मैं आपको थप्पड़ मारूं या मैं आपको अब्यूज करूं, दैट इज बैड कर्म। लेकिन अगर मैं मन से सोच रही हूँ कि इसका बुरा हो जाए और इसका काम कैसे बन गया, मेरा क्यों नहीं बन रहा, या ये कैसे प्रोग्रेस कर गई, मेरा तो अंदर से गालियां दे रही हूँ, मुंह पे नहीं बोल पा रही, दैट इज ऑल्सो कर्मा। ओके, दैट इज ऑल्सो कर्मा। आप किसी के लिए अंदर से ईगो कर लो, अगला है ना, ईगो, नेगेटिविटी, आपको किसी से जलन है, जेलसी, ये सारे जो इमोशंस आप बेयर करते हो, मन दे विच आंदे हैं, वो सारे भी आपका कर्मा जी गिने जाते हैं, वो कर्मा ही है। हाँ, हम सोचते हैं कि फिजिकल एक्शन को हम कर्मा बोल रहे हैं, कि मैंने इसकी गाड़ी मार दी तो वो कर्मा है। अच्छा, जेड़ा ਆਪਾਂ सोच के छाड़ देना कि छाड़ यार, वो चीज भी विच सारी बातें करके हम कह देते हैं चल हमें क्या हंसा नु की। प्लस हम गाड़ी में, आप गाड़ी में देखो कितने लोग गलत पार्किंग करते हैं या गलत चलाते हैं रास्ते में, और हम क्या करते हैं? स्टेयर, यू नो, वी स्टेयर, और वी कैसे चलाते हैं, और गाड़ी क्या चलानी नहीं आती, अपनी गाड़ी में तो हम बोल देते हैं देखो चलानी, दैट इज ऑल्सो, मतलब आप जिसके बारे में भी थॉट निकाल रहे हो, आपका उससे कार्मिक बॉन्ड बन जाता है। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लाइक एक्नॉलेज दिस फैक्ट कि हमें इस चीज को कम करना है, लेकिन आपको कॉन्शियस लिविंग इसको कहते हैं कि आपको अपने आप को रिमाइंड कराना है कि मैंने इस ट्रैप में नहीं फंसना। वो जैसे भी चला रहा है उसकी चॉइस है, हमें अपने रास्ते निकलना है, मुझे से अपना कोई कनेक्शन नहीं बनाना। जितना कम होएगा, जितना लाइफ में डिटैच्ड रहोगे, उतना आप जल्दी ग्रो करोगे स्पिरिचुअली। और अध्यात्म वही है, 5 मिनट अपने लिए निकाले, डू व्हाट यू लव टू डू। चाहे आप पेंटिंग एंजॉय कर रहे हो, लाइक बीइंग इन द मोमेंट इज मेडिटेशन, बीइंग थिंकिंग अबाउट नथिंगनेस, कुछ मेरे माइंड में नहीं चल रहा। एंड और टू ऐड ऑन, आई वुड लाइक टू ऐड कि यहाँ पे 60,000 थॉट्स एक दिन में हम इंसानों को आते हैं, 60,000, उसमें से नेगेटिव बताओ जी और पॉजिटिव बताओ। मुझे लगता है 50-50 होता होगा। 54,000 आर नेगेटिव, 6,000 आर पॉजिटिव। ये रिसर्च कहती है, रिसर्च कहती है। ठीक है। तो हम क्या, ज्यादातर हम नेगेटिव्स, उसको स्विच करना है बटन को, ऑपोजिट, 6 नेगेटिव रह जाए, 54 पॉजिटिव हो जाए, योर लाइफ इज सॉर्टेड। तो अपने आप को कॉन्शियसली रिमाइंड कराओ, वो एक माइंडसेट प्रैक्टिस से ही आएगा कि नहीं मेरी लाइफ अच्छी है, चाहे आपके सामने सब कुछ गलत दिख रहा है, मेरी लाइफ अच्छी है, आई नो आई एम डूइंग द गुड डीड्स। आप गुड डीड्स करो, सेवा करो, फिजिकल सेवा करो, दान करो, दूसरों को दिल से भला करो, किसी को सड़क पार कराओ, किसी को आपको लग रहा है नीड है, पानी खाना दो। ये छोटी छोटी चीजें चंगे कर्म च गिनिया ये कर्म है, ये आपके कर्म है। अपने पितरों के नाम का दान करो, पितरों के नाम का। आई रिसेंटली माय फादर, उन्होंने, मेरी दादी जी लास्ट ईयर गए, तो उन्होंने उनके नाम का वाटर टैंक खुलाया कि लोग पूरी उम्र लोग जो है उसका बेनिफिट लेंगे ना। तो दैट दीज आर द गुड कर्मास। आप आटा दान कर रहे हो, आप चीजें दान कर रहे हो, कुछ भी लोगों की किसी भी फॉर्म में हेल्प, वी हैव अबंडेंट। अच्छा नेहा, मेरी एक फ्रेंड सीगी, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी।
ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 9, 9:30 ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਚੌਂਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਬਲੈਕ ਸੀ, ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਔਨ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ? देखो आई हैव मेट एस्ट्रोलॉजर्स जिन्होंने मुझे बोला कि आई वाज इन द बेडरूम, और मैंने तो किसी को लिटरली बेड पे बैठे हुए देखा है। ठीक है, बट आई डोंट बिलीव, वही एनर्जी है, कुछ आपको फील होया होगा एनर्जी, बट ऐसा नहीं है। योर एंसेस्टर्स कैन ब्लेस यू, बट अभी तक आई हैव नॉट सीन एनी ऐसा मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस की जिसमें मुझे लगे कि कोई मुझे टच करे। या एनर्जी मैंने फील बहुत बार करी है, मेरे आंसू बहुत बार निकले हैं, मेरे गूज बम्स बहुत आए हैं। मैंने एक वो जो आपके अंदर से एक वो शिवरिंग होती है ना, वो चीज़ मैंने बहुत बार फील करी है, बट ऐसा नहीं, बट हो सकता है कुछ ऐसा। और मेडिटेशन करने के लिए देयर इज नो राइट टाइम, देयर इज नो रॉन्ग टाइम। द मोमेंट यू फील कि मेरे पास टाइम है, क्वाइट है, बस ये कि आप कोशिश करेंगे कि सिमिलर टाइम पे रोज करेंगे तो आपके माइंड को हैबिट बनती जाएगी कि हाँ इस टाइम पे मैंने ये काम करना है। यू विल गेट दैट पुश फ्रॉम इनसाइड कि हमको करनी, इस टाइम पे मेरा ये टाइम है। जैसे हम रोज खाने का टाइम है, बात का टाइम है, सारा टाइम है, तो उस हिसाब से आपको रोज का एक फिक्स टाइम रखना चाहिए। प्लस जो मेडिटेशन हम रात को करते हैं, रात को करने वाली मेडिटेशन आपकी पूरी रात चलती है। आई तो सजेस्ट कि आप सोने से पहले करो। सोने से पहले करो, लास्ट थॉट याद करते करते सो जाओ, यू विल हैव अ पीसफुल स्लीप एंड वो पूरी रात आपको अच्छा इफेक्ट देगी। ठीक है। ਤਾਂ ਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਰੋ ਰੀਡਿੰਗ ਲੋਕੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਯੁਸ਼मान खुराना हो, ऋतिक रोशन होन, तो ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ रहस्य है? आप इंस्टाग्राम पे या आप कहीं पे भी जाओगे, आप इतने देखोगे नेम चेंज, लोगों ने अपना एक्स्ट्रा यू, एक्स्ट्रा ए, एक्स्ट्रा आई लगा के अपने नंबर्स को बैलेंस किया हुआ है। अब नंबर्स क्या है, एवरी नंबर रिलेट टू अ प्लैनेट न्यूमरोलॉजी में। जैसे नंबर 1 हो गया सन का, तो सन क्या है, एक ही है पूरे यूनिवर्स में, हमारा पिता। तो अगर आपके अपने फादर से रिलेशनशिप स्ट्रांग है तो आपका सन स्ट्रांग है, सिंपल सेंस। मून होगी माता, मम्मा जी, मम्मी जी। आप मम्मी से रिलेशनशिप स्ट्रांग है तो आपका मन बैलेंस्ड रहेगा, मम्मी की दुआएं लगेंगी। दीज आर द प्लैनेट्स जिनको हम समझते हैं। गुड प्लैनेट्स में आते हैं 1 जुपिटर, 3 नंबर, 5 नंबर मरकरी। अच्छा, इदां दे किहड़े नंबर्स ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰबर ਜਾਂ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ फायदा ही? देखो, एक तो टोटल बड़ा जरूरी होता है कि टोटल अच्छा हो, प्लस कॉम्बिनेशंस में भी। अब ऐसा नहीं है कि आप 888 लेके 8 करके टोटल अच्छा बना लोगे। तो वो जो थोड़े से स्ट्रगल देने वाले प्लैनेट्स हैं, दैट आर 7, 4 and 8, राहु, केतु, शनि, SRK वी कॉल इट, है ना। सो इनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। एंड बाकी कॉम्बिनेशन जो है 1, 3, 5, 6 के अराउंड रहने चाहिए। 1 इज सन, 3 इज जुपिटर, 5 इज मरकरी, बुध, है ना, एंड 6 इज वीनस, लक्ष्मी, जो हम सबको चाहिए। तो अगर उनके अराउंड जो है हमारे नाम का टोटल रहना चाहिए, जिससे कि हमारी 40 से 50% रिजल्ट्स आपको अपने नाम में सिर्फ एक लेटर ऐड करके देखने को मिल सकते हैं। लाइक करियर वाइज सक्सेस चाहिए, वो सब। ਤੇ ਕਲਰਸ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ कलर्स हो गए? कलर्स में देखो, जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया, ब्लैक कलर की कार्स जो है थोड़ा ज्यादा ट्रबल देती हैं। बच्चे जिद करते हैं, इवन माय ब्रदर हैज ब्लैक, बट सिवियर एक्सीडेंट और मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है ब्लैक में ना। ब्लैक अवॉइड करनी चाहिए। एंड इवन अगर आपकी लाइफ भी स्ट्रगल चल रहा है, ब्लैक अवॉइड करो, रेस्ट, एवरीथिंग। हाँ, ब्लैक थोड़ा सा, थोड़े डार्क मैरून, इस तरह के कलर्स थोड़े अवॉइड करें थोड़ा टाइम के लिए, जब तक आपको लग रहा है कि लाइफ टफ है। अदरवाइज तो गुड टू गो। ਅੱਛਾ ਨੇਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਕਲਟ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਵ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੋल्व? बिल्कुल। देखो, नहीं ऐसे तो नहीं कह सकती मैं प्रोफेशनली, बट
आई कॉल माई सेशन साइको स्पिरिचुअल काउंसलिंग, लाइक Okay. आपकी साइकोलॉजी से कनेक्ट करके स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करा के काउंसिल करना। और कभी भी मैंने टैरो रीडिंग ऐसे नहीं करी कि आपकी जॉब लग जाएगी, दैट्स इट। आई काउंसिल देम कि यार परेशान क्यों हो, कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट अ फेज, निकल जाएगा। तभी दैट्स व्हाई दे हैव बिकम माय लाइक सोल कनेक्शंस ना, माय क्लाइंट्स हैव बिकम माय लाइक हर चीज में दे विल बी लाइक दीदी आप बताओ, मैम आप बताओ, और इतना प्यार कि नहीं आपसे पूछे बिना करना ही नहीं है, ऐसे रिलेशनशिप। क्योंकि आई काउंसिल देम कि यार, और कई बार मैं फ्री में भी करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर उनको लग रहा है बीच में कुछ इश्यू आ गया तो आई टेल देम कि जैसी मेरी कॉल खत्म होती है आप मेरे को कभी भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आई एम ऑलवेज देयर। ठीक है, दिस इज द थिंग। ऐसा नहीं है मुझे कॉल पे मेरी थोड़ी मतलब ਤੁਸੀਂ अवेलेबल रहने हो ना। हाँ, अगर उनका व्हाट्सएप आया मैम मैं गाड़ी लेने लगा हूँ और मेरे से कनेक्ट, मैं बता देती हूँ कि यार ऐसे कर लो, ठीक है, इस दिन ले लो या ये कलर ले लो, देयर इज नो इशू। कोई क्वेश्चन मिस हो गया आई टेल देम कि आप मुझसे पूछ सकते हो। कई बार आपको क्वेश्चंस नहीं याद आते उस टाइम पे, सो आई सेंड देम अ रिमाइंडर कि आप क्वेश्चंस रेडी रखो, पेन एंड पेपर रेडी रखो, सो दैट यू कैन नोट डाउन द नेसेसरी थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी डन। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ? अभी तक तो आई थिंक अराउंड 500 प्लस टैरो दे हाँ, विच? न्यूमरोलॉजी भी मैंने बहुत स्टूडेंट्स करे हैं। हाँ, ठीक है, टोटल में आप वही लगाओ अभी अराउंड 1000 तक होंगे मेरे। ठीक हाँ, है, पर बैच आई हैव 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स का अप्रोक्सीमेटली 28-30 का बैच होता है, जिसमें कि टैरो की एंड देखो गाइडेंस मुश्किल नहीं है, ट्रेनिंग मुश्किल नहीं है, टाइम भी 1.5 से 2 मंथ्स में, लेकिन इसकी प्रैक्टिस चाहिए। आई टेल देम कि आप प्रोफेशनली एकदम से ये मत सोचो कि हमने सीख लिया हम उतर जाएं, है ना, करने। यू टेक टाइम, यू प्रैक्टिस। जैसे कि आप मेरी सिस्टर हो या मेरी फैमिली का कोई मेंबर है कॉन्फिडेंट, उनसे प्रैक्टिस करो। आई स्टार्टेड विद माई सिस्टर, माई कजन, अभी भी बात रेगुलरली रहती है, चैट पे हम, वी आर ऑलवेज देयर। ठीक है, सो उनसे प्रैक्टिस करी और देन इट स्टार्टेड गेटिंग एक्यूरेट। मुझे भी ऐसे ही लॉज ऑफ यूनिवर्स अट्रैक्ट करते थे कि हॉरोस्कोप पढ़ना है और हम कहाँ से आए हैं, यू नो, क्वेश्चंस लाइक दीज कि कहाँ जाना है हमने। हाँ, बस वही सवाल मैं टैरो के इमेजेस अट्रैक्ट करती थी। सीखा तो बहुत इंटरेस्टिंग था, पढ़ने में बहुत मजा आता था, और पता नहीं आज तक आई हैव नेवर लर्नड अगेन। बस 2008 में एक बार सीखा था, तब से अब ट्रेनिंग में भी चल रहे हैं। टच वुड गॉड्स ग्रेस। ठीक है, ਤੇ ਨੇਹਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ ਦੱਸ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? वही अगेन आई विल से गुड कर्मा, दान, स्पिरिचुअलिटी, नाम जाप, सिर्फ 5 मिनट्स अ डे कैन चेंज योर लाइफ। आपको पावर मिलेगी, वहां से स्ट्रेंथ मिलेगी, एंड कुछ भी चैलेंज आ जाने लाइफ में, जस्ट वन थॉट, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ये दिस टू शैल पास, ये टाइम भी निकल जाएगा। ये चीज को बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है कि अच्छा टाइम नहीं रहा, लाइफ इज अ वेव, अप डाउन, और किसी की भी स्मूथ नहीं चलती। अब ये मत सोचो कि एस्ट्रोलॉजर है तो हमारी स्मूथ चल रही है, या ये है कि हाँ आई हैव दैट एबिलिटी कि मैं अपनी लाइफ को मैनेज अच्छे से कर लेती हूँ, मुझे पता है कि मैंने इस चैलेंज को कैसे टैकल करना है, ये बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ स्मूथ है या मेरे आसपास वाले लोगों की लाइफ। और अपने घर में तो पंडित सबसे बड़ा फेल होता है। माय मदर इन लॉ, शी डिड अ रेमेडी, अभी कनाडा में है, तो वीजा नहीं आ रहा था, मैंने रेमेडी दी, नहीं हुआ, किसी और की रेमेडी करी, यूट्यूब से वीजा लग गया। ਤੇ ਉੱਥੇ ਝੂਠੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। हाँ, अपने घर में तो आप पंडित बिल्कुल, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, बट ठीक है मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, बहुत उन्होंने मुझे एनकरेज भी करा है। बट ये है कि उनका बिलीव कम है। मेरे हस्बैंड इज एन एंटी, उनको बिलीव नहीं है, लेकिन ਪਰ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਲਾउ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ सपोर्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल फ्रीडम मेरे को बेशक वो आप इन्वॉल्व नहीं होते, ना ही मेरे को फैमिली का मतलब घर का प्रेशर। आई टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं सारा कुछ इकट्ठे मैंने, जैसे आज मैंने यहाँ आना था तो मैंने जिसको टाइम देना था मैंने कल का दे दिया। आई डू नॉट बर्डन माई सेल्फ, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, काम के लिए, तीनों चीजों को मैनेज करना है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बर्डन करके अपने आपको आज 10 सेशंस ले लूँ और अगले दिन मैं खा लूँ, क्योंकि एनर्जी बड़ी ड्रेन होती है ना। यू स्पीक अ लॉट, आपको 45 मिनट, सामने वाला कहेगा ना मैम 15 मिनट दे दो, 30-40 मिनट से पहले आप फ्री नहीं हो पाओगे, बिकॉज आई हैव टू टॉक। मुझे जितना बताना है वो मेरे अंदर से नहीं निकलेगा ना, आप नहीं सेटिस्फाई हो पाते। उतना जब तक नहीं दे पाऊंगी मुझे लगेगा कुछ मिसिंग है। 4 रेमेडी ने, मेरे हस्बैंड भी मुझे कहते तू बहुत रेमेडी दे देती है। मैं कहा उसकी प्रॉब्लम ज्यादा थी, एक दिन साथ बैठे थे, मैं कहा उसकी प्रॉब्लम ज्यादा थी, तो मेरे को लगता है जितनी मुझे पता है मैं सारी दे दूंगी, कोई तो लग जाएगी ना इसको। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।